Today we are going to discuss a beautiful poem and the name of the poem is The Rebel. So let's understand what is a rebel. So in the first slide you will able to see the word rebel. So here you will find the pronunciation, how to pronounce this word. So here you must not say rebel, you have to say rebel. The pronunciation is rebel. So what does means rebel? Rebel का मतलब क्या होता है? Here this is the definition of the word rebel. Rebel means a person who does not like to obey rules or who does not accept normal standards of behavior, dress, etc. यानी उस पर्सन को हम रेबल कहते हैं जो क्या करता है, जो बिल्कुल नहीं मानता, क्या नहीं मानता, रूल्स को, रूल रेगुलेशन को नहीं मानता और जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो सोसाइटी में बनाया गया है उस नॉर्मल स्टैंडर्ड और बिहेवियर को या ड्रेस क्लॉथिंग को ये सब नहीं मानता हो, दैट पर्सन इज नोन एज रेबल. इन ओडिया उनमें से विद्रोही, इन हिंदी इनमें से बागी. अभी समझ में आ गया होगा व्हाट डज मीन रेबल. सो हियर दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम. The poem that we are going to discuss tells the nature of a rebel. यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रेबल क्या होता है, what kind of nature he or she possess, who does just opposite of what others do, जो कि opposite करता है क्या, of what others do. तो दूसरे लोग जो करते हैं उसका opposite वो रेबल ही करता है. तो यहाँ पर द पोएट टेल्स दैट इट इज डेंजरियस बट एट द सेम टाइम इट इज गुड बिकॉज इट इज रेबल हु कम्स विद द न्यू आइडियाज. द हियर द पोएट हैज सेड हियर मीन्स इट इज डेंजरियस, somehow it is dangerous, but if we see another point of view then it is good. ये बहुत अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि हमें न्यू आइडिया, न्यू थॉट आते हैं. तो ये क्या कुछ है, चलो इस पोएम में डिटेल में समझेंगे. So what is the name of the poem? Name of the poem is The Rebel. So this is the poem. It is in, I have divided into 3 slides. So let's, it is in 4 slides, sorry. So let's start the poem. So when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic cloth. When everybody wears fantastic cloth, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says, yes please, the rebel says, no thank you. When everybody says, no thank you, the rebel says, yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. So this is the poem and the poet is DJ Enright. So let's go through the each line in detail. So ये जो 2 लाइन को एक जैसे सेपरेट हुआ है तो इसको कहा जाता है कपलेट. COUPLET कपलेट. ये एक पोएटिक डिवाइसेस है क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे हिंदी में तुम देखे होगे यानी शायरी जैसे होता है, दोनों मतलब फर्स्ट लाइन का एंड सेकंड लाइन का एंड जैसे थोड़ा बहुत साउंड जैसे सेम आता है, तो ये कपलेट ही एग्जैक्टली सेम हिंदी का वही शायरी जैसा सेम होता है. तो यहाँ पर चलो समझते हैं फर्स्ट लाइन्स में क्या कहा गया है. व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. इट मीन्स हियर इट इज क्लियरली मेंशन दैट व्हेन एवरीबडी, सभी लोग जब क्या करते हैं, दे हैव शॉर्ट हेयर, जब अपना छोटे छोटे बाल रखते हैं तो रेबल क्या करता है, वो अपना बाल को, हेयर को
इट्स ग्रोच लॉन्ग, लंबा लंबा रखता है, मतलब इट मीन्स बाकी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हेयर रखते हैं, एंड द रेबल कीप्स लॉन्ग हेयर, means contradictory, opposite exactly. Like then the second one, when everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब बाकी लोग जब बड़े बड़े लॉन्ग हेयर रखते हैं तो दैट टाइम द रेबल्स कीप्स शॉर्ट हेयर, वो हेयर को कट कर देता है और छोटे छोटे हेयर रखता है. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When everybody is discussing in the classroom, that time rebel does not say a word. He never interrupt or he will never participate in the discussion. So here it is the opposite to others. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. Jab whenever everyone is silent and nobody is talking, at the time the rebel creates a disturbance. It means the rebel does the opposite here. He started to talk. In this way, in the next stanza or lines you may say, when everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic cloth. यानी जब whenever everyone wears uniform, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं डिसेंट क्लॉथ, दैट टाइम द रेबल ड्रेसेस किस तरह का ड्रेस पहनता है, फैंटास्टिक क्लॉथ. फैंटास्टिक मीन्स कलरफुल क्लॉथ. लाइक दैट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल में आ जाते हो, नॉर्मल डे में क्या करते हो, तुम जनरली यूनिफॉर्म पहन के आते हो. बट वेन एवर इट इज एनी ओकेजन, इट मे बी सरस्वती पूजा और एनी गणेश पूजा और एनी सच काइंड ऑफ एनुअल फंक्शन, दैट टाइम यू वेयर फैंटास्टिक क्लॉथ. तो उसी वक्त कलरफुल तरह तरह का ड्रेस पहन के आते हो. तो यहाँ पर जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, दैट टाइम रेबल वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ. इट मीन्स कलरफुल क्लॉथ. लाइक दैट व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, मगर जब बाकी लोग कलरफुल ड्रेस पहन के आते हैं तो रेबल क्या करता है, it dresses soberly. Soberly means, you will able to see here, soberly means in a serious, sensible manner. यानी we can say cool cloth. यानी यूनिफॉर्म यू में से soberly मतलब वेरी डिसेंट क्लॉथ वो पहनकर आता है. जब whenever other people or other student they wears fantastic cloth, it does opposite to them. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. यानी जब इन ए कंपनी ऑफ डॉग लवर मीन्स वेन एवर द पर्सन द पीपल दे लव डॉग्स, यानी जो सपोज कोई आइडिया कोई थॉट को वो पसंद कर रहे हैं, तो उसी वक्त क्या करेगा, इट प्रिफरेंस फॉर कैट्स, यानी वो उनकी बातें पर सहमत नहीं होगा. इट विल गोज अगेंस्ट देम, इट विल गोज अगेंस्ट देयर ओपिनियन. सो यहाँ पर इफ द पीपल आर प्रिफरिंग डॉग, एट दैट टाइम द रेबल विल प्रिफर कैट. And here in the next one, in the company of cat lovers, the rebel puts a good word for dogs. Here also, if the other people they are preferring, they are loving the cat. So at that time, the rebel will preach, puts in good word. Good word means here preach. वो preach करता है, किसका preach करता है, dogs का preach करता है. तो it means हर बात में opposite हो रहा है rebel का. In this way, when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain. Need for rain. जब कभी भी सभी लोग प्रेज कर रहे हैं सन को, सपोज दिस विंटर सीजन है, वहाँ पर क्या होंगे, जब सनलाइट थोड़ा सा मतलब आएगा तो धरती पे, तो क्या करेगा, हमें खुश लगेगा क्योंकि विंटर है, ठंडक लग रहा है, तो हम बोलेंगे प्रेज करेंगे, ओ थैंक गॉड एटलीस्ट वी गॉट सनलाइट. मगर उसी वक्त क्या करेगा, रेबल विल से ही विल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ द रेन. उस वक्त तो बारिश की मतलब नीड के बारे में बताएगा. सो इन दिस वे व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सभी लोग रेन को ग्रीट कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा बारिश हुआ, जब वो ग्रीट कर रहे होंगे तो उसी वक्त क्या करेगा, रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. तभी वो सन का एब्सेंस को मतलब महसूस करेगा और थोड़ा सा रिग्रेट करेगा. रिग्रेट मतलब थोड़ा दुखी होगा, का सूरज नहीं है आज. जब बाकी लोग मतलब रेन हो रहा है ये खुश होंगे, तो बोलेगा हाँ सनलाइट नहीं है, सन नहीं है. सो देयर विल रिग्रेट. व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक. और जब व्हेन एवर एवरीवन गोज टू द मीटिंग और अटेंड द मीटिंग, दैट टाइम रेबल विल स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक. व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब बाकी सब घर में पढ़ रहे होंगे, घर में बैठे हुए, तभी द टाइम द रेबल गोज टू द मीटिंग. सो हियर देयर इज द opposite here.
In this way, when everybody says yes please, the rebel says no thank you. यानी जब कभी वो बोलेंगे तुम कुछ ऑफर करो कि या समथिंग विल डू, एवरीवन विल एग्री हाँ यस दिस इज गुड, बट दैट टाइम द रेबल से नो 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 थैंक यू. In this way, when everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. यहाँ पर दिस इज द ओपिनियन ऑफ द पोएट. हु इज द पोएट हियर? डीजे एंड्राइड. वो कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि हम हमारे मन में क्या है, वी हैव रेबल्स. हर किसी के दिल में यानी रेबल्स है. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मगर ये अच्छा है, मगर दूसरों के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है. यू मे लाइक इट बट द अदर पीपल दे मे नॉट लाइक योर थॉट, लाइक योर आइडिया. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. Another thing here you will able to see here there are few words like that. Short. Short is the word here means what is the opposite of short? Here long. Like that long short. यहाँ पर देखो first two stanza जैसे stanza और couplet कह सकते हैं. This is the couplet, first couplet, second couplet. ये दोनों interlink है. इसी हिसाब से these two are interlinked. These two, these two, these two and these two. Like that here these two are also interrelated. Now I think all of you are able to understand what is rebel. Rebel means a person who goes against something, who do something opposite of others. कुछ वो दूसरों से opposite जो करता है, that is known as rebel.